Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing magnetic effect of electric current, and I think we had discussed the Biot-Savart law and Ampere's law in this chapter. So doubts correspondent to the Biot-Savart law and Ampere's circuital law we had already finished, and today is the turn to discuss the remaining doubts. और मैंने आपको ऐसा बोला होगा कि ये आपको मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड ये करके लाना था आपको पूरा, और एक और टॉपिक मैंने आपको बोला था कि आपको और ये करके लाना है कि ये फोर्स एंड टॉर्क करंट कैरिंग कंडक्टर आपको ये करके लाना था, ये दोनों चीज़ आपको लाना था. So once again, I'm asking you, anybody wants to ask the question from the very first topic, that is Biot-Savart law and Ampere's law? Sir, third. Third question, okay. A vertical straight conductor carries a current vertically upward. A point P lies to the east of a small distance. East, a small distance. Sir, third. Third, okay. If a और copper, सर वो भी मोशन वाले में. क्या बोल रहे हो? और वो भी अच्छा, मुझे ये बताओ कि बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ में किसी को कुछ पूछना है? नहीं, वो तो हो गए सर. ओके ओके, बस एनीबडी वांट्स टू आस्क, लास्ट कॉल. इसमें किसी को कुछ पूछना है? बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ. Okay, so let's start to discuss the question correspondent to the motion of a charged particle and the magnetic field. चलो इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है? थर्ड. थर्ड वन, ओके. क्या लिखा है? Two particles x and y having equal charge after being accelerated through the same potential difference. देखो दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया था वो भी सेम है. They enters in the region of the uniform magnetic field. Describe the circle of the radius r1 and r2 respectively. What is the ratio of the radius, that is r1 to r2? तो फ्रेंड्स रेडियस आपको करना है, बट आप एक चीज़ याद रखो हमेशा कि whenever this kind of question is asked, when the magnetic particle enters in the when the charge particle enters in the magnetic field, so you can apply these two formula. Either you can apply mv upon qb, so that is the one number, and other thing, the kinetic energy, that is a q square r square b square by 2m. So these are the two formula you can apply. Here we had provided the charge particle are accelerated by the same potential difference. तो आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल q है and if it is accelerated by the potential difference v, then its kinetic energy can be given by qv. चलो यहाँ तक तनिष समझ में आया आपको? यस सर. यहाँ पे ये फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है. विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. एक q कैंसल, आर स्क्वायर को सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाते हैं. अच्छा, मुझे मास का रेशियो फाइंड करना है, तो मास को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ. मास को तो q आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी, ऐसा होगा? yes or no? यस सर. Yes, sir. Now the particles and having a same charge, मतलब दोनों का चार्ज सेम है, accelerated by the same potential, मतलब पोटेंशियल भी सेम है, and enters in the same magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. तो ऑब्वियसली m प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? आर स्क्वायर. बाकी तो सारे क्वांटिटी सेम ही है ना, तो m2 विल बी इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर. उसमें क्या है? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर.
चलो अप टू 20. 15. 15 1 5. ओके. સર આ ક્યુવી વાળો કોન્સેપ્ટ બહુ ખબર નહીં પડતી એમાં. હું દર વખતે ક્યુવી ઇક્વલ્સ ટુ હાફ એમવી સ્ક્વેર કરું છું, પછી વી ની વેલ્યુ નિકાળવી પડે છે, પછી એમાં हाँ तो આર इसके ની लिए વેલ્યુ आपको પછી. एक शॉर्टकट, इसके लिए तो मैंने आपको एक शॉर्टकट कर दिया कि यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू क्यू वी. ओके. ઓકે સર. चलो क्वेश्चन नंबर 15. तो क्या लिखा है? अ प्रोटॉन ऑफ अ मास m एंड चार्ज प्लस e moves in the circular orbit magnetic field with the energy of 1 mega electron volt. What should be the energy of the alpha particle having a mass 4 times than that of proton and charge double, so that it can revolve with the same radius? Radius same है तो वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात की हुई है. तो in this kind of situation you can apply the shortcut formula kinetic energy q square r square b square by 2m. ओके. तो यहाँ पे ऐसा है कि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं एंड दोनों का रेडियस भी मुझे सेम चाहिए, सेम रेडियस भी मुझे सेम चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाई एम हो जाएगा. યસ સર. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन, तो क्यू स्क्वायर बाई एम फॉर अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू स्क्वायर बाई एम फॉर द प्रोटॉन होगा, ऐसा होगा. હા યસ સર. अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है ना वो 2e जितना है और उसका मास जो है ना वो 4m है, ऐसा दिया हुआ है हम लोगों को, वो दिया हुआ है. तो चार्ज जो है वो 2e का स्क्वायर अपॉन 4m मास, एंड प्रोटॉन का जो चार्ज है वो e है और उसका मास तो m ही है. स्क्वायर बाई एम कैंसल, 2 टू ज़ा 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 ऑल्सो गेट कैंसल्ड. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा तो फ्रेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज कम्स आउट टू बी द रेशियो इज 1:1. आपका जो रेशियो है 1:1 आ गया. तो मतलब ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज. इज इट ओके? યસ સર. एंड इज इट द सेम आंसर? सॉल्यूशन में वही आंसर है कि अलग है? હા સર સેમ है. સેમ. ओके फाइन. चलो और बताओ. 91. ओके. At a specific instance, emission of the radioactive compound is deflected in the electromagnetic field. The component can emit electron, protons, neutrons, or He. Excuse me. At a specific instance, emission of the radioactive component is deflected in the magnetic field. Then what should be that component? वो कंपोनेंट क्या होना चाहिए? तो कंपाउंड ने क्या एमिट किया होगा? देखो आप है ना चैप्टर नंबर 13
द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ न्यूक्लियस। तो आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसके द्वारा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा 3 टाइप के पार्टिकल एमिशन हो सकते हैं। 3 टाइप के पार्टिकल एमिट हो सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा का मतलब ऐसा हुआ 2He4, वो 2He4 का न्यूक्लियस है। रिमेंबर, इट इज अ न्यूक्लियस, इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। बीटा पार्टिकल और कोई नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है। एंड गामा पार्टिकल तो जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। गामा रेज, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो पहली बात ये कि देखो, ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं। न्यूट्रॉन तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बट उसके लिए आपका क्यू तो होना चाहिए ना, तो चार्ज पार्टिकल तो होना चाहिए। वैसे न्यूट्रॉन तो एमिट भी नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी में, तो न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। रेडियो एक्टिविटी में प्रोटॉन्स भी एमिट नहीं होते हैं, रेडियो एक्टिविटी में प्रोटॉन्स भी एमिट नहीं होता है। तो क्या हो सकता है? यस, तो इट कैन बी इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी He2+, ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है। मुझे ये बताओ ना क्या आंसर दिया हुआ है। अच्छा हाँ, वही तो है, वही तो है। अब क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ ना। 1 and 3, 1 and 3 वाला कोई ऑप्शन है? दैट शुड बी Yes, द आंसर इफ वी कैंसल 2। वैसे प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है, बट रेडियो एक्टिव एमिशन में प्रोटॉन का एमिशन होता ही नहीं है। तो शायद वहाँ पे ऑप्शन ए लिखा होगा, बट द इज हाँ सर, ए लिखा है। ए लिखा है, बट वहाँ पे 2 को निकाल देना पड़ेगा। ओके सर। ओके, प्रोटॉन क्यों एमिट नहीं हो? अरे भाई, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात है, तो रेडियो एक्टिविटी में है ना, प्रोटॉन तो एमिट होता ही नहीं है। हम्म, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, अल्फा न्यूक्लियस मतलब हीलियम न्यूक्लियस एमिट होता है। तो ये दोनों पॉसिबल है, और न्यूट्रॉन भी एमिट नहीं होता है। ओके सर। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, तो और बताओ। 93। 93। क्वेश्चन नंबर 93। 93। ओके, mixed helium plus and O2 plus ions been passes a region of constant perpendicular magnetic field. If the kinetic energy of the all ions are in the same, then तो वही वापस से वही फॉर्मूला शॉर्टकट अप्लाई करना है आपको, मैंने जो आपको शॉर्टकट बोला था वो। सो वापस से वही शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। That the kinetic energy can be given by formula Q square R square B square by 2m। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है। तो कह रहा है इसे रेडियस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m अपॉन क्यू स्क्वायर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। तो कैन आई से, देखो r को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ तो 2m के अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू स्क्वायर, सो r प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू।
जिसका रूट एम बाई क्यू रेशियो ज़्यादा मिलेगा हमको, जिसका रूट एम बाई क्यू, देखो चार्ज भी दोनों का सेम ही है, नहीं चार्ज एच ई प्लस है, एच ई प्लस मतलब एक चार्ज है वहाँ पे और यहाँ पे 2 प्लस है, ओके फाइन। तो जिसका जिसका रूट एम बाई क्यू रेशियो ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, और जितना रेडियस ज़्यादा उतना वी कैन से उसका डिफ्लेक्शन कम है। रेडियस जितना ज़्यादा है उतना हम ऐसा कह सकते हैं उसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे सपोज के मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और एक चार्ज एंटर हुआ, एक ने छोटा रेडियस वाला पाथ ऑब्े किया और दूसरे ने बड़ा रेडियस वाला पाथ, तो किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ ऐसा कह सकते हैं? डिफ्लेक्शन कौन ज़्यादा कर रहा है? छोटा रेडियस वाला। छोटा, जिसका रेडियस कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो हमको ये फाइंड करना है कि रेडियस कितना किसका कम रहेगा, जिसका रेडियस कम उसका उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा। तो कर ही देते हैं चलो, आर एच ई अपॉन आर ओ, तो रूट एम बाई क्यू रेशियो फॉर एच ई अपॉन रूट एम बाई क्यू रेशियो फॉर द ओ। अब मास जो है ना एच ई का वो 4 है और चार्ज उसका प्लस ई है। मास जो ओ का है ना वो 16 है और उसका चार्ज जो है ना वो +2 ई है। तो फ्रेंड्स ये इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गेट कैंसल्ड, √4 मतलब 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4/4 मतलब ये तो 1 हो गया भैया, 1 हो गया मतलब इक्वल डिफ्लेक्टेड इक्वली हो जाएगा, दे विल डिफ्लेक्ट इक्वली। इज दैट क्लियर? आ रहा है यस क्या सर। आंसर? सर आंसर हाँ वही है, सर, देखो तो। आंसर वही है। बट आपको यहाँ पे ये याद तो रखना है, बिकॉज जिसका रेडियस कम है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, वो चीज़ माइंड में रखना। कभी कभी अगर सपोज के रेशियो सेम ना मिले तो ये याद रखना है आपको। ओके सर। ओके, यस सर। चलो और बताओ। 111। 111, સર હોલ ઇફેક્ટ શું છે? वो 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 तो मुझे भी पता नहीं बट पता चल जाएगा, देखो। In the case of Hall effect for the strip having charge q and the area of cross section A, the Lorentz force is, अब ये हॉल इफेक्ट क्या है वो तो मुझे भी पता नहीं है, बट लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो मुझे पता है। यहाँ पे एरिया भी है, नहीं पता नहीं, इसका हॉल इफेक्ट नहीं पता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 111, ओके। नहीं लिखा कुछ, लिखा नहीं है कुछ। आंसर ए दिया है तो वो तो लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूला में तो पता चल ही जाएगा कि आंसर ए है, बिकॉज लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q into E plus VB। तो वैसे लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला तो ये तो क्लियरली बता रहा है कि वो प्रोपोर्शनल टू क्यू है। तो अच्छा, जो देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, चाहे कोई भी इफेक्ट हो, कोई भी फिनोमिनन हो, बट लॉरेंस फोर्स का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना भैया, चाहे वो इफेक्ट हो या कोई और इफेक्ट हो, बट लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा ना, हाँ। उसमें तो क्या दिक्कत है? इज इट क्लियर? अच्छा ओके, हाँ सर। तो लॉरेंस फोर्स का तो फॉर्मूला वही का वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी फिनोमिनन हम पढ़ रहे हो। अच्छा हाँ। चलो, सर 116। 116, ओके।
सर 115 भी से 115 प्ले कर देते हैं, उसके बाद 116 करते हैं. Electron moves in the circular orbit. 115 I am talking about. Electron moves in the circular orbit with the uniform speed v. It produces a magnetic field B. देखो, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ रहा मैग्नेटिक फील्ड की बात है. देखो, ये दोनों चीज अलग है. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका रोटेशन का जो रेडियस होगा वो mv/qb होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ईबी होगा. ये अलग चीज है. ये किसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा? ये मैंने किसके लिए फॉर्मूला लिखा? व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो अलग कोई सिस्टम के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, और इलेक्ट्रॉन वहां पे परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, तो ये इसका रेडियस है, वो सर्कुलर पाथ का. बट यहाँ पे अलग चीज है. यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर घूम रहा है, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बात है. तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो वो भी एक टाइप से करंट कैरिंग लूप बनाएगा. तो उसके द्वारा उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो वो आपको पता है भैया कि मैग्नेटिक, अच्छा म्यू नॉट ni/2r. या एग्जैक्टली μ0I/2r. तो ये चीज अलग है. यहाँ पे बी इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड बी है ये, और ये जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों अलग चीज है. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. तो सर यहाँ तो पे बस इसकी बात ही नहीं, यहाँ पे इसकी बात नहीं है, यहाँ पे इसकी बात है. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड, इट प्रोड्यूसेस. वो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की बात है. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यस सर. सर. तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोई एफ फ्रीक्वेंसी के से रोटेट हो रहा है, तो उसके द्वारा करंट कितना जनरेट होगा? तो बोले एफ ही जितना, I इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्यू. अगर चार्ज क्यू है तो एफ क्यू होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो करंट प्रोड्यूस बाई इट विल बी इक्वल्स टू एफ ही. अब उस यहाँ पे जो दिया है ना, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है बट स्पीड दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं. आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, 2πr. हाँ वो वही, आप इसके बदले ये भी कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. ओमेगा के बदले 2πf लिख दो. तो अगर फ्रीक्वेंसी को हटाना है पिक्चर में से, तो इट विल बी अ v/2πr. उसमें क्या है? तो पुटिंग दिस वैल्यू, तो बी इंड्यूस्ड μ0/2r इंटू एफ इंटू ई. अब एफ के बदले हो जाएगा v/2πr. तो बी इंड्यूस्ड आई कैन से μ/4πr². अब क्या पूछा है? रेडियस के बारे में है. तो r² इज इक्वल्स टू म्यू वेलोसिटी इंटू ई अपॉन 4πb. तो r² प्रोपोर्शनल टू v/b, तो r प्रोपोर्शनल टू v/b का रूट. इज दैट क्लियर? यस सर. एक तो पहले तो आपको ये समझना है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है. तो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. इज दैट क्लियर? ઓકે સર. સર हाँ बोलो. સર એમ તો પછી ધારો કે કોઈ મેગ્નેટિક યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય છે કોઈ વેલોસિટીથી, તો एग्जैक्टली એ સર્ક્યુલર મોશન કરશે, તો એ સર્ક્યુલર મોશન બી કરશે અને બી ઇન્ડ્યુસ પણ કરશે. करेगा ही ना, ऑब्वियसली करेगा. क्यों नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा. સર તો પછી એમ તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ્સ આમ એટલે રિઝલ્ટન્ટ તો પછી કોમ્પ્લિકેટેડ નહીં થઈ જાય. तो आपको इसी उसके देखो, सही बात है. अगर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और वो उसके सर्कुलर मोशन के सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सर्कुलर मोशन के सेंटर पे, तो आपको एक्सटर्नल तो जो अप्लाई किया होगा वो होगा, और ये प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि दोनों के डायरेक्शन के साथ क्या एंगल है.
दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है या कुछ एंगल बन रहा है, उसके बाद आपको बी इफेक्टिव इक्वल्स टू रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कोस थीटा करोगे तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। સર પછી એ રિઝલ્ટન્ટ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવ્યું એના લીધે પછી કોઈ ગ્રેડિયસમાં देखो चार्ज, देखो मेरी ફેરફાર बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चार्ज, देखो हम ये आप इसको पहले से ना इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ लिंक करो। कोई चार्ज पार्टिकल कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो ये जो पूरा सिस्टम होता है तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो जो एक्सटर्नल होगा वो होगा और दो जो चार्ज का है वो होगा, जो चार्ज का खुद का भी होगा ना कुछ। बट देखो कोई भी चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगता है वो उसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा नहीं लग सकता है। वॉट एवर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी ड्यू टू ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही कह सकता हूँ कि यहाँ पे भले ही चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बट चार्ज का जो मोशन है उसके ऊपर इफेक्ट कौन कर रहा है? ओनली एक्सटर्नल। ओके, ઓકે સર इज दैट क्लियर? યસ સર 116 electric field of 1500 volt per meter and magnetic field of 0.40 Weber per meter square acts on the moving electron। देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया हुआ है। द मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म स्पीड याद करो, खत्म बात खत्म। વેલોસિટી સિલેક્ટર हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर, तो आपको पता होगा कि v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, બાય तो शायद यही होगा। देखते हैं एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द स्ट्रेट लाइन मतलब विदाउट द डेविएशन, तो डेफिनेटली यही होगा। अब तो क्लियर हो गया। द इलेक्ट्रॉन वुड हैव इज, तो ई बाई बी ही करना है आपको, दैट्स इट, खत्म बात, खत्म क्वेश्चन। तो उसमें क्या है भैया? यूं ही नहीं दिल लगाता कोई, जाने तुम 37500 कुछ ऐसा आएगा। हाँ ये हो गया ना, देखो ये रहा 37500, 3750, ये आंसर आ जाएगा, ये 3750। इज इट ओके? Yes, sir. चलो और बताओ। બસ થઈ ગયા अच्छा, फोर्स एंड टॉर्क वाला टॉपिक किया है? નહીં એ નહીં કરે છે तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई आपको देखो 2 लेक्चर हम लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये सॉल्व नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, अब जो है ना, मैं हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द क्रिटिकल क्वेश्चंस। ओके, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप आते हो संडे, देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन मैं तो आपके डाउट सॉल्व कराऊंगा और एक दिन मैं क्रिटिकल कराऊंगा, तो ये आपके लिए बैलेंस हो जाएगा पूरा। હા એવું બી કરાય સર બટ એમાં પછી સર થોડું કારણ કે એમાં કેવું થશે એક વીક મળશે અને એમાં બે ટોપિક સોલ્વ કરવાનું થશે क्या बोल रहे हो? સર એટલે તમે ધારો કે એવું રાખો કે સન્ડે ની જગ્યાએ તમે વેડનસડે રાખો ને જેડબલ્યુ નો, તો દરેક ટોપિક માટે બે દિવસ તો એટલીસ્ટ મળશે ओके, અને तो सही અડધો बात है, संडे કલાકમાં का डाउट लेक्चर। अच्छा देखो, आज सैटरडे है राइट, आज हमारा लेक्चर है 7:30 to 9 राइट, હા ये वेनसडे को भी 7:30 to 9 लेक्चर रख सकते हैं। હા સર એટલે એવી રીતે શું અડધો કલાકમાં ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય અને 1 કલાક ક્રિટિકલ કરશું એટલે बराबर हो બંને सकता है। લેક્ચરમાં ક્રિટિકલ બી થશે અને બંને લેક્ચરમાં ओके, ડાઉટ मुझे સોલ્વિંગ कोई બી થશે प्रॉब्लम नहीं है, सेट वेडनेसडे मेरा कुछ होता नहीं है, तो क्या સર आप વેડનેસડે લેક્ચર હોય છે? હા कितने સર, बजे होता है? મેથ્સનો 7:45 to 9:15. 7:45 को होता है, तो 6 to 7:30
मैथ्स नो बोर्ड नो है 5:30 to 7. ओके। अच्छा, आप लोग स्कूल पे जाते हो क्या? जવું પડે છે સર. तो फिर वेनसडे देखो मेरा तो पूरा खाली है। तो આ તો સન્ડે જ वेनसडे રાખીએ. हमारा जो कन्वेंशनल टाइम है 1 to 2:30, वो हो सकता है क्या वो एडजस्ट? 1 to 2:30 થઈ જશે. उसमें प्रॉब्लम है किसी को? लास्ट कॉल, लास्ट कॉल वेनसडे 1 to 2:30। ના સર. यहाँ प्रॉब्लम आया। सर वेडनेसडे हाँ, कितना वागे? बायो का लेक्चर 2 to 3:30 है यहाँ पे। ओके, सो 12:30 to 2 o'clock तक रख सकते हैं, 12:30 to 2 o'clock। सर ना सर 12 to 1 હોય છે મેક્સ. देखो तो फिर मैं कहाँ पे एडजस्ट? કઈ નહીં તો સર રવિવારે જ રાખીએ. वो संडे का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि जूही शेट। સર પછી પ્રોબ્લેમ શું થાય કે થોડો ઓછો ટાઈમ મળે. अच्छा, एक काम करते हैं, ओके, जस्ट लेट। सो कम टू द क्रिटिकल क्वेश्चन। हाँ, बट तो भी जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो तो मैं आपको बोल देता हूँ अभी कि आपको ये दो चीज करके लाना है, फोर्स एंड टॉर्क वाला करके लाना है, करके लाना है एटलीस्ट। चलो ये एक टॉपिक को सॉल्व करके लाओ, बस वही बाकी है ना अभी, तो वही बाकी है, एक ही टॉपिक बाकी है, तो ये खत्म करके लाना। ओके હા સર. ओके, हमने क्रिटिकल स्टार्ट किए कि स्टार्ट ही नहीं किए? સ્ટાર્ટ કિए थे कुछ 5 हाँ, 4 हुए थे. ये 1 to 3 कराया होगा मैंने, और उसके बाद डायरेक्टली ये 5th कराया होगा, 4th बाकी होगा, राइट? 1 to 3 कराया होगा ये, और ये 5th का समझाया होगा कि भाई ये दोनों आर्क के द्वारा हाँ वो तो 1:1 होगा 0 आंसर। वो कुछ हाँ 1 हाँ, 6 से बाकी है. अरे 4th भी बाकी है। 4th शायद करवा दिए. Two straight conductor AOB and COD are perpendicular to each other, carries the current I1 and I2। देखो सीधी सी बात है, दो वायर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है, तो उसके द्वारा कोई भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे सपोज कि अज्यूम मान लो कि ये जो वायर है वो AOB है और ये जो वायर है वो COD है, ऐसा मान लो। तो AOB का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सपोज कि ये पॉइंट, कोई ये पॉइंट कंसिडर कर लो आप, तो मुझे ये बताओ कि ये AOB वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? अच्छा, आपको कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी चेक द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड induced at the point P at the distance A from the point O परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ABCD। अच्छा, ये ABCD द्वारा जो प्लेन प्रोड्यूस हो रहा है उसके एक परपेंडिकुलर पॉइंट आपको सोचना है। ये ABCD से जो पॉइंट ये प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो मतलब आपको 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक पॉइंट O ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे आप, मैं दिखा नहीं सकता अब मैं आपको। हाँ सर समझ Z एक्सिस पे. अच्छा, अब देखो, आप एक काम करो, वायर COD को पकड़ो, अभी वायर COD को आप होल्ड करो राइट हैंड में, तो वायर के ऊपर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा? मतलब अच्छा हाँ जो राइट साइड. पॉइंट, हाँ, इसको मैं X बोल देता हूँ, चलो इसको मैं X बोल देता हूँ, इसको Y बोल देता हूँ, और आउटवर्ड डायरेक्शन को Z बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पॉइंट है, दो ये पूरे प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है परपेंडिकुलरली, तो वहाँ पे अगर आप वायर को COD वायर को होल्ड करोगे तो आपका फिंगर वहाँ पे राइट साइड जाएगा, सही बात है, मतलब X डायरेक्शन में जाएगा। और अब ये AOB वायर को पकड़ो तो, और ऊपर वायर के ऊपर के साइड जो पॉइंट है उसमें आपका फिंगर जो है वो कैसे बाउंड होगा? नीचे नीचे नीचे. की तरफ, एग्जैक्टली नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब दोनों है तो परपेंडिकुलर ना, एक गया X डायरेक्शन में, दूसरा गया Y डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ यस सर. तो आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। cos 90 तो 0 होता है। इज इट ओके? हाँ सर.
तो अब B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 1/2 पाई ए, डिस्टेंस तो दोनों के लिए ए है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, B2 म्यू नॉट आई 2/2 पाई ए। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए कॉमन हो जाएगा और रूट में रहेगा I1² प्लस I2²। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन, रूट I1² प्लस I2²। हाँ सी। आया बात समझ में आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट, देखो ये मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से ये वायर आ रहा है और यहाँ पे राइट एंगल बना के वो नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि अच्छा क्या है, अन इन्फाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर पी क्यू आर को दिख रहा है, is bent to form a right angle as shown. A current I is flows through the PQR बराबर है magnetic field due to this current at the point M is H1। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो सिस्टम है वहाँ पे इसके द्वारा ये पॉइंट M पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल r है, तो H1 का वैल्यू कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? अच्छा हम ये सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। हाँ परफेक्ट। पार्ट नंबर 1 ये इनफाइनाइटली वायर एंड पार्ट नंबर 2 ये वाला इनफाइनाइट वायर, बट इस जो नीचे का वायर है उसके लिए तो ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है, हाँ 0। जो हाँ इसके लिए तो ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्सिस के पॉइंट में तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस वायर, और वो सेमी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट है। θ1 विल बिकम 0 एंड θ2 बिकम्स 90। तो H1 का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन इनफाइनाइट का 2 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर। चलो अब H1 तो मिल गया। अब क्या बोला है, नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर QS इज कनेक्टेड एट द पॉइंट Q। अब देखो अब ये किया है कि अब एक अलग और इनफाइनाइट वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इनफाइनाइट को। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ से आई करंट जो आ रहा है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे जंक्शन बनेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा I/2, नीचे भी कितना जाएगा I/2। चलो ये पता चला आपको। यस सर। तो अब पॉइंट M पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि I/2 जा रहा है, बट वो नहीं लिखे तो भी हमको ऐसा ही करना है, वो ना लिखा होता तो भी हम ऐसा ही करते। तो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द H2 नाउ, वही वापस से पॉइंट M पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अभी कितना होगा। तो अभी वो सेमी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेमी इनफाइनाइट, राइट साइड वाला सेमी इनफाइनाइट, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस क्या लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को अगर मैं कॉमन ले लूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को, तो एक बचेगा 1, एक बचेगा 1/2, तो कहना ऐसे 3/2। हाँ यस सर। अब मुझे रेशियो निकालना है H1 अपॉन H2, तो H1 अपॉन H2 का रेशियो निकाल दो, क्या मिलेगा आपको? 3/2। 3/2 नहीं 2/3 मिलेगा भैया। अरे H1 अपॉन H2 करना है ना, H2 अपॉन H1 थोड़ी ना करना है। अच्छा Is that clear? यस सर। Asked in the IIT is a good question. It's okay. यस सर। Two coaxial solenoid 1 and 2 of a same length are set so that one is inside the other. The number of turns per length N1 and N2, current I1 and I2 are flowing in the opposite direction. The magnetic field inside the inner coil is 0. Then what is possible?
देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो सेम हो जाएगा। बिकॉज देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही है, बिकॉज उसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट जीरो कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, रिजल्टेंट मुझे जीरो करना है तो कब होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले से ही है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ यस सर। Yes, sir. तो हमको पता है कि मोनी मोनी, तो एक ही कंडीशन बचता है कि N1 I1 शुड बी इक्वल्स टू N2 I2। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी पॉसिबल है। हाँ I1 इज इक्वल्स टू मल्टी I2, कर। हाँ तो भी वही हो जाएगा ना, सही बात है। क्या दिया आंसर, देखो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन वैलिड है। एक बार देखो तो क्या आंसर दिया है। सर कंप्यूटर बंद करना क्यों होगा? हाँ सर पीसी में હતું હવે બંધ કરી નાખ્યું છે। अच्छा देख लेते हैं। देखो दोनों आंसर है, सही बात है, देखो देख लो आप, सी एंड डी बहुत आर द आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। डायग्राम तो એવા આપે કે જોઈને જ બીક લાગે। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप एक बार सॉल्व करने ट्राई करोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। मुझे लगता है कि मैं एक आध क्वेश्चन स्किप करके कराऊँ, बहुत देर लगेगा अदरवाइज। बहुत सारे हैं, क्रिटिकल में भी बहुत सारे हैं। ओके चलो एथ क्वेश्चन करवाना चाहिए मुझे। इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट। A coil having n turns, it wound tightly in the form of spiral with the inner and outer radii A and B respectively। देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि स्पाइरल स्प्रिंग है, जिसका इनर रेडियाई ए है एंड आउटर रेडियाई बी है। इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है, ऐसे स्पाइरल रिंग है। तो सिंपल मुझे ये बताओ कि सिंपल रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सिंपल रिंग का। मिनट है ना ए स्क्वायर अपन मतलब सेंटर पे मिनट है हाँ अपन 2 सेंटर पे ही की बात है, हाँ। तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है, यस और नो? यस सर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पाइरल रिंग दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वेरी, ईयर लेके हाँ इंटीग्रेशन। वहाँ पे यहाँ पे कुछ सेगमेंट लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे रिंग है जिसका जो रेडियस है ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि R है, उसका रेडियस है ना, इसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं कि R है और उसका थिकनेस DR है। સર થિકનેસ નો લોજિક શું એટલે થિકનેસ કેમ લેવું પડે? ठहर भी जाओ, 2 मिनट तो ठहर जाओ। अब मुझे ये बताओ कि ये जो n नंबर ऑफ टन्स है, n नंबर कैपिटल N नंबर वो कितने डिस्टेंस में है, n नंबर ऑफ टन्स कितने डिस्टेंस में है, मुझे ये बताओ सोच के। n नंबर ऑफ टन्स कितने डिस्टेंस में है? સર
खबर ना पड़ी। हाँ मतलब ये जो नंबर 1 2 3 4 5 एन नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने डिस्टेंस के अंदर है, कितने विड्थ के अंदर है, कितने विड्थ के अंदर है। बी माइनस ए। परफेक्ट। तो इन बी माइनस ए विड्थ, in b minus a thickness the number of turns are n. So in dr thickness how many is the number of turns? So the number of turns equals to, can I say n dr by b minus a? हाँ सर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये करना पड़ेगा कि वो स्मॉल एलिमेंट के द्वारा कितना मैं, चलो ये बी माइनस से पता चला ना सबको, यस सर। कहाँ से आया, तो ये समझो कि ए है और ये समझो कि बी है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स ये जो भी दिख रहा है वो कितने अंदर होगा, तो वो ए से स्टार्ट करके बी तक होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो बोले बी माइनस ए होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना वे पहले स्मॉल एलिमेंट मतलब ये जो स्मॉल रिंग मैंने जो अज्यूम किया है उसके द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब मैं करूंगा क्या, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एलिमेंट दैट वी हैड चूज। સર આવા કોઈ ક્વેશ્ચનમાં ખબર તો પડી જાય કે કંઈક ડિફરન્શિએટ કરીને જે વેરિયેબલ હોય એને ઇન્ટિગ્રેટ देखो કરવાનું બટ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज वेल एज वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहोगे ये आइडिया तब आपको आता रहेगा। वैसे ये एडवांस डायरेक्टली एडवांस के एग्जाम में क्वेश्चन ये कर रहा हूँ अभी मैं, तो वही तो होता है, उसी को तो इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, उसी को तो इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो वो સર બટ कहते આવો हैं, ખ્યાલ तो ना આવે ને કે આવું हाँ तो थिकनेस उसके ना लिए એટલે क्या करना कंपेयर। पड़ेगा, उसको लिए इसके लिए आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसका कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सब आ जाए, इसका कोई रास्ता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ थिकनेस डी आर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डीबी बोल देते हैं। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बट एन डैश आई नाउ, म्यू नॉट एन डैश आई अपॉन 2 आर। क्या ये बात आपको समझ में आई? और एन डैश का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, हाउ मेनी द नंबर ऑफ टर्न्स होता है, એન્ડ ડીઆર अपॉन हाँ बी माइनस है। एन डी आर अपॉन बी माइनस है, और ये आई बचा वो आई को मैंने आगे लिख दिया, चलेगा। चलो ये तो जस्ट रिंग का मिला। तो अब पूरा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन कर करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक। देखो ए से बी, डी आर के ए से बी रिस्पेक्ट, तक। डी आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, डी आर, डी आर मतलब रेडियस, तो रेडियस ए टू बी, बाकी है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस ए, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस ए 1/r/dr। अब बताओ मुझे 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है। एलएनआर। किसी के घर पे से आवाज़ आ रही है, ज़रा म्यूट कर दो। म्यू नॉट एन आई अपॉन टू बी माइनस ए एंड 1/r का होता है इंटीग्रेशन एल एन आर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ए टू बी। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करो। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए एल एन बी माइनस एल एन ए। तो फ्रेंड्स एल एन बी माइनस एल एन ए तो क्या होता है, એલએન બી अपॉन ए। एल एन बी बाई ए। સર એટલે તમે આવું કોઈ ફોલોઅપ્શન આપી દો કે કોઈ બી આવું આવે તો આ તો વેરિયેબલ આ રીતે લેવાનું ને। देखो ये तो ऑलरेडी 11 से ही बोला हुआ है कि वेन एवर वी हैव अ वेरिएबल क्वांटिटी, देखो ये तो रूल बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है, बहुत बार हमने किया हुआ है कि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी आई, कौन सा क्वांटिटी वेरिएबल आया, तो बोले रेडियस वेरिएबल आया। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था जो रिंग का वो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r था। बट यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग है, मतलब बहुत सारे रिंग अलग अलग रेडियस के हैं। स्पाइरल स्प्रिंग है मतलब बहुत सारे रिंग अलग अलग रेडियस के हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट बहुत बार हमने किया हुआ है कि वेन एवर वी हैव अ वेरिएबल क्वांटिटी इन द सिस्टम, in that kind of situation you have to consider a small element,
you have to find that quantity with respect to that particular small element, and then you have to take the integration. This is a standard rule, and we had learned this lots of time. Okay. Yes sir. Okay. Okay sir. बट वो अप्लाई कैसे करना है ना, वो आपका इंटेलिजेंस है, रूल तो वही है. ओके. Okay sir. तो इज देयर एनी दिस काइंड ऑफ आंसर इज देयर? ये रहा ऑप्शन सी. आया बात समझ में? हाँ yes sir. चलो और एक कर लेते हैं, और मजा आएगा. देखो यहाँ पे ऐसा है, जो मैं बोलता हूँ उसको उसको सुनो. आपके पास बुक है? बुक हाँ सर. तो मेरे सामने देखो, मेरे सामने देखो. तो बुक को ऐसे, मतलब उसके दो पेज एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे रखो, दो परपेंडिकुलर रखो, इस ऐसे परपेंडिकुलर रखा. Yes sir. बस तो ये वही चीज है, यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वही है. तो यहाँ पे क्या है भैया कि ये करंट ऐसे जाके मतलब ये वाला जो प्लेन है, अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये वाला एक बुक का पेज है और एक नीचे वाला पेज है. इज इट क्लियर? Yes sir. आप एक काम करो, इस डायरेक्शन में आपको, आपके ये इस डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करो, तो आपका थंब कहाँ पे जा रहा है? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो थंब कहाँ पे जाएगा? रोटेट कराओ आपका फिंगर. Vertical upward. अरे कहाँ पे अपवर्ड जाएगा? ये प्लेन आपका ऐसे साइड में है, तो सर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. ये आपका पेज साइड में ऐसे वर्टिकल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो कर रहा है, तो ऐसे आपको फिंगर बाउंड करना है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सर जाएगा? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. तो ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, ऐसे जाएगा. तनिष पता चला आपको? हाँ सर. और अब नीचे का जो प्लेन है, नीचे का जो प्लेन है, वहां पे करंट के डायरेक्शन में आप हाथ घुमाओ, तो कहाँ पे जाएगा? अपवर्ड. अपवर्ड. तो वो अपवर्ड जाएगा. चलो ये बात पता चला आपको? तो फ्रेंड्स, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, बिकॉज दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? बिकॉज दोनों का जो देखो 1 2 3 1 2 3 दोनों में सेम हिसाब से करंट फ्लो हो रहा है. तो B1 शुड बी, आई शुड से B इंटू आई कैप, एंड B2 इज इक्वल टू, आई शुड से B के कैप, बिकॉज वो Z डायरेक्शन, ये वाला अपर डायरेक्शन है ना, वो Z डायरेक्शन है. ये अपर डायरेक्शन Z डायरेक्शन है. तो क्या ये पता चला आपको? Yes sir. तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, वो आपका हो जाएगा बी आई कैप प्लस बी के कैप. इज दैट क्लियर? Yes sir. तो आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यू नीड टू फाइंड द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट इज इन द डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन का, ओनली डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब जस्ट आपको डायरेक्शन फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर निकालना है आपको. तो ये हो जाएगा बी, उसका मैग्नीट्यूड बी आई कैप बी के कैप, और उसका वेक्टर बी आई कैप प्लस बी कैप, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √2b होगा, अंडर इसका. Yes sir. तो 1/√2 आई कैप प्लस के कैप, ऐसा कोई है? Yes sir. आया बात समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? यस सर. इंटरेस्टिंग. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes sir. यस सर. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये क्वेश्चन वापस से एडवांस में पूछा था, आईआईटी स्क्रीनिंग एग्जाम. सर स्क्रीनिंग એટલે શું થાય? देखो पहले क्या था कि पहले AI ट्रिपल था, जो हमारा जो मेन एग्जाम जो है ना, उसको पहले AI ट्रिपल बोलते थे, और AI ट्रिपल क्लियर करने के बाद IIT का एग्जाम होता था, स्क्रीनिंग एग्जाम, जब जो जिसको हम अभी एडवांस एग्जाम बोलते हैं ना, वो स्क्रीनिंग एग्जाम था पहले.
ओके, और जे डबल स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, वो एडवांस हो गया आपका, अच्छा, ओके। वो आपका जे डबल हुआ। अब देखो आप, अब आपका ये यहाँ पे तो आपका मतलब हम खत्म आपकी, अभी ये देख लो सोचने की आपकी कितनी ताकत है वो पता चल जाएगा आपका। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट इन द जेड डायरेक्शन, इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। चलो कोई मुझे बताएगा, ये है ना, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये कोई मुझे बताएगा ये क्या है, ये मैंने जो डॉट किया वो क्या है एक्चुअल में? एक्सिस। नहीं, दैट Negative इज Z स्ट्रेट, axis. नहीं नहीं नहीं, दैट इज अ स्ट्रेट वायर अलोंग दैट डायरेक्शन। ओके, आपको तो नहीं दिखेगा ना वो, अच्छा, ओके। वायर है। और मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ नेगेटिव, लिखा लिखा है ना, लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लिखा हुआ है, देखो नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके, करंट अंदर जा। तो अब करना क्या है आपको, तो करना ये है कि आपको एक्स कोमा वाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स मेरा कोई पॉइंट है यहाँ पे, पी का जो पोजीशन है ना वो एक्स कोमा वाई है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो हो जाएगा हमारा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई। सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर आर का अगर मैग्नीट्यूड मैं फाइंड करूँ, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो आर का मैग्नीट्यूड मतलब वायर से उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये पॉइंट का हमारे जो वायर है ना उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्या वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। वो तो सीधी सी बात है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा फॉर्मूला? मिनट आई अपन 2 पाई। वी नॉट आई अपॉन टू पाई, वो तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर का जो वैल्यू है वो तो हमको पता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसके डायरेक्शन के साथ फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्शन भी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, तो अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि कोई, यूनिट ऊपर वेक्टर। नीचे वेक्टर। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अगर कोई भी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो क्या करना होता है, उसका मैग्नीट्यूड को आपको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको पता है? या यस सर। चलो इतना तो पता है, राइट? हाँ तो बोल दो। यस यस सर। सर। तो अब मुझे क्या करना है कि आई वांट टू फाइंड दिस एन कैप, तो कैन आई से एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई डी एल क्रॉस आर कैप। कहाँ से आया? फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ। हाँ। देखो याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। मतलब डायरेक्शन तो यही है, आई डी एल का डायरेक्शन क्रॉस आर कैप का डायरेक्शन, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी बी। इज इट ओके फ्रेंड्स? बट मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड, मैंने क्या किया, दोनों का यूनिट वेक्टर कर दिया। इज इट ओके? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि आई डी एल का डायरेक्शन क्या है, ये करंट का डायरेक्शन क्या है? जे कैप, के कैप, गंदी माइनस बात, के कैप। क्रॉस वेक्टर आर का हो जाएगा आर अपॉन आर, तो माइनस के कैप क्रॉस एक्स आई प्लस वाई जे કેટલું अपॉन आर। complicated। तो अब ये हो जाएगा कि -1 अपॉन आर, चलो -1 अपॉन आर, तो एक्स बाहर, के आई क्या होता है, आई आई जे के आई जे, तो के आई क्या हो जाएगा, जे। एक्स जे बचेगा
और के जे क्या होगा, के क्रॉस जे, जे के आई तो के जे, माइनस आई। और वाई तो बचेगा, माइनस आई बचेगा। तो अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन आर। तो अभी तो आपको क्या मिला, आपको यूनिट। अब ये यूनिट वेक्टर जो है उसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब वेक्टर बी मिल जाएगा मुझे, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू द यूनिट वेक्टर वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन आर। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई वाई, म्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर के बदले क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 11th નું વેક્ટર્સ નું કોન્સેપ્ટ મિક્સ કરે। अरे वो कॉन्सेप्ट तो है ही, बट ये क्वेश्चन खुद ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैं नहीं मानता कि अगर किसी ने नहीं किया आगे तो डायरेक्टली ये ऑन द एट द टाइम ऑफ एग्जाम कोई कर पाया होगा। बट है सिंपल, बट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। समझ में आया आपको? સર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આવતું કરવા જઈએ કે એક્સ કોઓર્ડિનેટ ઉપર આપણે ફાઇન્ડ કરે અને પછી વાય કોઓર્ડિનેટ ઉપર ફાઇન્ડ કરે પછી એનું વેક્ટર कैसे करो ફોર્મેશન લઈ बताओ લઈએ। मुझे, कैसे करोगे आप, मुझे ये बताओ कैसे करोगे। સર એટલે પેલા મિનોટ આઈ 2 પાઈ પછી અચ્છા હા આર તો પછી હા બરાબર એટલે હું આઈ કેપ લેવાનો હતો આઈ मुझे કેप जे पर्टिकुलर કેप। ये पी पॉइंट पे फाइंड करना है, ये बात आपके मगज में मतलब माइंड में रखना है आपको, ये पी पॉइंट पे फाइंड करना है आपको। आप ट्राई करना, और कोई मेथड हो तो मुझे बताना ट्राई करके, ओके? सर नहीं सर नहीं मैं हो तो सकता है, वो हो सकता है, आप ट्राई करना, ओके? હા સર બટ ડિસ્ટન્સ લેવામાં તકલીફ થશે। हाँ હું આઈ કેપ અને જે કેપ અલગ અલગ થી કરું તો પછી ડિસ્ટન્સ માં વાંધો પડે वो સાइन ट्राई थीटा करना, cos और कुछ थीटा हो ले तो लो। मुझे बताना। ट्राई करना और कुछ हो तो मुझे बताना, ओके? हाँ ओके सर। चलो ये 11 क्वेश्चन उसका भी बाप है। ये अगर ये चैप्टर ऐसा है कि कराने बैठूं तो ख़त्म ही नहीं होगा। ये 11 क्वेश्चन उसका भी बाप है। दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन द आईआईटी। ये लोग कैसे कैसे क्वेश्चन बना देते पता नहीं चलता। देखो समझते हैं शांति से। अ पार्टिकल ऑफ अ चार्ज प्लस क्यू एंड मास एम मूविंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप। देखो यहाँ पे हमको ये बात तो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ई आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बी के कैप है। फॉलोज द ट्रेजेक्टरी फ्रॉम पी टू क्यू। देखो ये पी टू क्यू उसका ट्रेजेक्टरी है। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग का जो उसका रेडियस है ना वो ए है, बट वो जब एंड होता है तब जाके 2 ए हो जाता है। ऐसा क्यों होगा, कोई मुझे बताएगा ऐसा? देखो मैग्नेटिक फील्ड की तो आ, औकात नहीं है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेगा, वो, डायरेक्शन। हाँ वो तो खाली डायरेक्शन चेंज करेगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। बट रेडियस बढ़ाने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। रेडियस बढ़ाने का काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस कब बढ़ती है? जब वेलोसिटी का वैल्यू डबल होता है। तो वो दिया हुआ है, देखो वैसे भी वो दिया हुआ है कि यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी 2v है। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे जाके डबल हो गया, बिकॉज देखो सीधी सी बात है कि r इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो रेडियस तब डबल होगा जब वेलोसिटी डबल होगा। तो अब क्या करना क्या है? तो हाँ वो बात बराबर है कि अगर आपको रेडियस डबल करना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी डबल होना चाहिए।
तो क्या है, तो फिर करना क्या? સર આ તો પછી સર્ક્યુલર મોશન નહીં કરે ને हाँ, वो સાયક્લોટ્રોન જેવી सर्कुलर પેલું मोशन नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। साइक्लोट्रॉन जैसा होगा, डेफिनेटली साइक्लोट्रॉन जैसा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज ट्रू, करेक्ट? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, तो द वेरी फर्स्ट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले। तो देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दिया हुआ है कि क्या ये हो सकता है, सोचो कैसे होगा। લોરેન્સ ફોર્સ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही उसको ये काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट यू द इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट मिलेगा। ओके, तो W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू डेल्टा के। एफ का मतलब क्यू ई डॉट डी इज इक्वल्स टू हाफ एम टू वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। तो एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, क्यू ई डॉट डी इज इक्वल्स टू हाफ एम टू वी द होल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो है ई, क्या है, ई आई कैप है डॉट। अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? तो उसका जो फाइनल पोजीशन, પીક્યू नहीं, फाइनल पोजीशन उसका 2a आई कैप है एंड इनिशियल पोजीशन उसका है ना वो ए जे कैप है। देखो उसका फाइनल पोजीशन 2a आई कैप है, देखो देख सकते हो आप, और इनिशियल पोजीशन उसका ए जे कैप है। इज इट ओके? हाँ यस सर इज इक्वल्स टू ये 2v द होल स्क्वायर का मतलब 4v स्क्वायर। तो 1/2 m 4v स्क्वायर मतलब 1/2 mv स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 4 - 1 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, बट आई कैप डॉट जे कैप तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2e बचेगा, क्यू ई बचेगा, 2a बचेगा, इज इक्वल्स टू 3/2 mv स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अब मुझे मिल जाएगा, इट शुड बी अ 3/4 2 to the 4 mv स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू ए। क्या ये है? हाँ देखो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, सब कुछ समझ में आया आपको? हाँ सर अब क्या है दूसरा पर, द रेट ऑफ द वर्क डन। रेट ऑफ द वर्क डन मतलब पावर, पावर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। हाँ, तो पावर हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी डब्ल्यू बाई एफ टी डॉट वी होता है। हाँ ये भी सर तो एफ तो क्यू ई आई कैप है, और पॉइंट पी पे मुझे ये बताओ, पॉइंट पी पे वेलोसिटी क्या है पॉइंट पी पे? पी तो वी आई कैप। तो ये आपका आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो क्यू ई वी रहेगा। अब क्यू दैट इज क्यू ई वी मतलब क्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू वी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 3/4 mv स्क्वायर बाई 2 तो 3/4 एम वी क्यूब अपॉन ए। तो क्या ऐसा बोला है? सही बात है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। आया बात समझ में? यस सर अब ऑप्शन सी के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन सी के बारे में सोचते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आपको एग्जाम में स्किप कर देने चाहिए। when there is a more than one when you are required to check each and every option, तो इसको आपको स्किप ही कर देना चाहिए।
पर अभी तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि सपोज कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले आपको, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन, तो आपको काम आएगा। द रेट ऑफ अ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P is 0। तो ये तो सी तो ऑब्वियस, अगर बी सही है तो सी तो गलत ही होगा, अगर बी सही तो सी तो गलत ही होगा ना। हाँ सर। एंड द रेट ऑफ द वर्क डन बाय द both the field at the point Q is 0। अच्छा, ये शायद सही होना चाहिए। रेट ऑफ द वर्क डन बाय both the field at the point Q सर is तो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो करसेच ना। नहीं करेगा ना, क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज देखो, अच्छा आई कोड आई हाँ कैप डॉट आई हाँ, कैप यहाँ पे आई कैप आएगा और वी में क्या हो जाएगा, 2v जे कैप आ जाएगा, 2v जे कैप माइनस 2v जे कैप, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 सर। 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड से तो हाँ वर्क, ये तो कसु करसेच ना। मैग्नेटिक फील्ड से तो वर्क हो ही नहीं रहा है, तो फिर वर्क ही नहीं हो रहा है, तो फिर वर्क का रेट तो होगा ही नहीं। यस सर। तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, तो देखते हैं हम करेक्ट है कि नहीं। मस्त क्वेश्चन है ना ये। हाँ सर। तो लेट्स फाइंड इट आउट, इज इट सो और नॉट। સર આવા ક્વેશ્ચન તો સ્પેશિયલ સેક્શન આપે છે ને આ લોકો हाँ, वो क्रिटिकल મલ્ટી है। કરેક્ટ। तो जो लोग एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जेडब्ल्यू में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट होते हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा है। बट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये क्रिटिकल ना करो और बाकी के सारे क्वेश्चन कर लो आप, तो नीट तो हो ही जाएगा, नीट वालों को क्रिटिकल करने की जरूरत ही नहीं है। बट जेडब्ल्यू में भी आराम से आप फिजिक्स के अंदर 20-25 क्वेश्चन, तो भी आप आराम से, 25 क्वेश्चन है तो 15 से 18 क्वेश्चन तो आराम से आप लिख पाओगे। अगर क्रिटिकल नहीं करते हो, जो बाकी का असाइनमेंट करते हो, तो भी 15 से 17 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ये क्रिटिकल तो एडवांस के लिए है, और जो 5-7 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पूछने वाले हैं उसके लिए है। ओके, हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन था? क्या? 11th। देखो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी एंड डी, इज दैट ट्रू? देखो मैंने जो कहा था वो बराबर है ना, हाँ सर। ए बी एंड डी। इज दैट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, क्या ये मैं आपको दे दूं होमवर्क में? ये अभी हमने ये एच ई प्लस प्लस वाला किया था, याद है आपको? हाँ सर। ये सेम ही हमने किया था, डिफ्लेक्शन वाला ही किया था। तो हमने ये प्रूव करके दिया था कि H प्लस एंड O2 प्लस वाला सेम डिफ्लेक्शन होगा, याद है? हाँ सर। ये वही क्वेश्चन है। इज इट ओके? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 13। An ionized gas contains both positive and negative ions। देखो कोई आयोनाइज्ड गैस है, उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है। इफ इट इज subjected simultaneously to a electron field along the x direction and magnetic field along the z direction, then what happened? तो यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक लगेगा। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव है। रॉन्ग आंसर है, गंदी बात, एकदम गंदी बात। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए लगेगा बिकॉज स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही नहीं सकता है। एक बार चार्ज मोशन में आ जाए
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको फोर्स लगा पाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ यस सर। तो सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज सब चार्ज स्टेशनरी है। मैं है ना पहले पॉजिटिव के लिए मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, उसके बाद नेगेटिव के लिए हम सॉल्व करेंगे। पहले अच्छा बोलो सर, क्या એટલે बोलो? સાયમલ્ટેનિયસલી એટલે પહેલા नहीं, ઇલેક્ટ્રિક પછી साइमल्टेनियसली का मतलब दोनों अप्लाई तो साथ में ही किया हुआ है, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में अप्लाई किया हुआ है, बट भले ही साथ में अप्लाई करें, बट प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज तो स्टेशनरी है ना। आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो इसका मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों फोर्स साथ में, फील्ड लगाया है, फोर्स साथ में नहीं लगेगा, फील्ड को साथ में apply किया है। હા સર। मैग्नेटिक फोर्स तो तब कब जाके लगेगा जब चार्ज मोशन में आएगा। तो ઓકે સર। में कौन लाएगा उसको, मोशन में लाएगा कौन पहले? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, या ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सोचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात मैं कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी चार्ज के ऊपर, फोर्स जो है ना इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो वो जो भी वेलोसिटी अचीव करेगा वो एक्स डायरेक्शन में अचीव करेगा पहले तो। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? तो बोले भैया क्यू वी क्रॉस बी। अब क्यू तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी मैंने बताया आपको आई कैप के डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी तो आई कैप के डायरेक्शन में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? के कैप। ए कैप के। तो आई क्रॉस के का मतलब क्या होगा? माइनस जे। चलो पॉजिटिव आयन विल फाइनली इट विल डिफ्लेक्ट, पॉजिटिव आयन फाइनली कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा? माइनस जे कैप पे। अब नेगेटिव आयन के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव का क्या होता है? यहाँ पे पहली नजर से हमको ऐसा लगेगा कि अगर पॉजिटिव आयन का डिफ्लेक्शन माइनस जे कैप है तो नेगेटिव का क्या होना चाहिए? तो पहली जे नजर से कैप। आपको हाँ वो ऐसा लगेगा, बट देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव आयंस के बारे में देखते हैं। चलो पहले कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, बट अब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव, और ई का तो डायरेक्शन आई कैप ही है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव आयंस कौन से डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा? माइनस आई कैप। वो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ना वो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा। अच्छा पेलू माइनस माइनस प्लस। तो नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव है अभी, और वेलोसिटी वेक्टर भी माइनस आई कैप है, तो क्रॉस बी क्या होगा? तो बी तो के कैप है, तो माइनस माइनस प्लस तो वापस से माइनस जे कैप आ गया। तो बोथ द आयंस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। जगास क्वेश्चन है ना? हाँ सर। तो करो आप, अगर आप ऐसे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, ऐसे 5 क्वेश्चन, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, दैट विल बी इनॉर्मस। आप ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्राई करने के लिए बोलता हूँ मैं, कि आप है ना ये 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करके आप 25 तक, एटलीस्ट ये 25 तक जो क्रिटिकल है ना उसको ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, आप देखो कोई बात नहीं, आप पीछे सॉल्यूशन में देख सकते हो, बट 25 तक ट्राई करो। तो आपको मैं 2 काम दे रहा हूँ आज के दिन पे। एक ये जो टॉर्क वाला जो पोर्शन है वो पूरा, वो तो आप कर लोगे, आप थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपके हिसाब से, उसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा तो मैं करवा दूंगा। तो ये आप ये टॉर्क वाला कर लो, और दूसरे 25 तक क्रिटिकल वाले ट्राई करो, सोचो थोड़ा। ओके, हाँ सर। ओके सर। तो आज का सेशन अभी यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम टाइम को सेट करना पड़ेगा अभी। सर जे છે